Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about electrostatic potential and potential difference. Also derived the formula of electrostatic potential. Today, we are going to draw a graph which represents variation of electric field and potential with distance r. So, let us start. We have to draw a graphical variation. E and V with R. You know all the terms. I have written symbolically. E electric field intensity, V potential, and R is distance of point of observation from source charge. So as we know, electric field inversely proportional to R square, potential inversely proportional to R. So let us try to draw the graph. R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका वेरिएशन इसके कंपैरेटिवली फास्ट होगा. देखिए ओरिजिन है, इसको ले लीजिए R, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज, और इस पर E एंड V, और इस पर E भी लेना है और V को भी रिप्रेजेंट करना है. अब देखो, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. अब यहीं से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो, एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो इसका वेरिएशन इसके कंपैरेटिवली फास्ट होगा. वेरिएशन का मतलब डिक्रीज करेगा, लाइक दिस. ये कुछ इस तरह का आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएशन विद R. तो इस तरह का ग्राफ अगर कभी ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो ड्रॉ कर लीजिए. अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग एक और टर्म प्रूव करने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. सही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले के बेसिस पर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. आई थिंक यू ऑल आर वेल नोन बाय द टर्म कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स के दो प्रॉपर्टी हैं. एक तो वर्क डन टू मूव एनी पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is independent upon the path, depends only upon initial and final position. And second one, work done along closed path against R by conservative force is always equal to 0. तो अगर हम लोग क्लोज पाथ पर वर्क डन को 0 प्रूफ कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर मान लिया जाएगा. सपोज वी हैव टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम A to B. First from A to B and then from B to A. ये we have to carry the charge Q naught from A to B. यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग वर्क डन को फाइंड कर रहे हैं. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन टू carry or test charge from A to B. यहाँ पोटेंशियल एज्यूम कर लीजिए. पोटेंशियल एट A इक्वल टू V, पोटेंशियल एट B इक्वल टू V. Now what will be work done? WAB. And you know potential difference. Potential difference between A and B
VB minus VA is equal to W AB upon Q naught. So WAB equal to VB minus VA into Q naught. ये वर्क डन हो गया टू मूव और टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B. Now find work done. Work done to carry the same test charge Q naught from B to A. ये फाइंड करना है. इसमें B to A आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इट इज इक्वल टू WBA अपॉन Q naught और WBA इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q naught. देखो दो वर्क हम लोग फाइंड कर लिए WAB एंड WBA. नाउ वी हैव टू फाइंड वर्क डन along this closed path. Now work done along closed path ABA. WABA ABA is equal to WAB plus WB. Now put the value of WAB. This is VB minus VA into Q naught and WBA equal to VA minus VB into Q naught. Q naught may be taken common. VB minus VA plus VA minus VB. देखो VB VB cancel, VA से VA cancel, that is equal to 0. Since work done to carry a charge in electric field along closed path is equal to 0. This work is done against electrostatic force. Since work done along closed path is 0, so what can we say? We can say that electrostatic force is conservative. Since work done against electrostatic force along closed path is 0. So electrostatic force is conservative force. So in this way we can prove that electrostatic force is conservative force. अब अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को मूव करना हो, जैसे मान लो ये पॉइंट हम लोग ले लें, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, चार्ज को मूव कर रहे हैं किसी भी चार्ज को, एक ये पाथ है, एक ये पाथ हो गया सेकंड, एक ये पाथ हो गया थर्ड, और कहा जाए किस पाथ में वर्क डन सबसे अधिक होगा. सो ऑल वर्क डन इन ऑल द थ्री पाथ विल बी सेम बिकॉज फोर्स इज कंजर्वेटिव. दैट्स वाई work done is independent upon path followed. That's why work done to move any charge from A to B in all the three cases will be same. तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ हम लोग वर्क डन को इक्वल लिखेंगे वहाँ. तो ये कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया हम लोग, ये ग्राफिकल वेरिएशन था. अब इसके बाद हम लोग को ये डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस.